Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my YouTube channel. Today we will discuss last topics of transport and which are blood vessels, general plan of human blood circulatory system, and cardiovascular disorders. And what are blood vessels? Blood vessels ऐसे vessels को हम कहते हैं which can transport blood throughout the body, and they are classified into arteries, veins, and capillaries. What are arteries? Arteries are the blood vessels that carry blood away from heart. Mostly ऐसे blood vessels को हम arteries कहते हैं जो हमेशा heart से away blood लेके जाते हैं. बेसिकली तमाम आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाते हैं एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरी विच कैन कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स. पल्मो का मतलब होता है लंग्स. तो इसलिए ये पल्मोनरी आर्टरी वाहिद आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाता है हार्ट से लंग्स तक. बाकी के तमाम आर्टरीज जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाते हैं. If we talk about the structure of arteries, they are composed of three layers. Outer layer, middle layer और inner layer में इनको divide किया है. The outer layer is made up of connective tissues while the middle one is made up of smooth muscles and elastic tissues. और जबकि inner layer जो है वो endothelial cells का बना होता है. And the hollow internal cavity is known as lumen, जिसको lumen कहा जाता है. When these arteries reach to the tissues, they will divide into small vessels. They are known as capillaries, जिनको हम capillaries कहते हैं. ये जब उसके तक जो टिश्यूज़ के करीब जाते हैं तो वहाँ पे ये डिवाइड हो जाते हैं और डिवाइड होके ये आर्ट्रियोल्स बनाते हैं और फिर आर्ट्रियोल्स फिर फर्दर डिवाइड होके कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाते हैं या कैपिलरीज बनाते हैं. And what are capillaries? These are again smallest blood vessels present in tissues, and they are divided from arterioles. Arteries divide होकर arterioles बनाते हैं और arterioles divide होकर capillaries बनाते हैं. And they are also obviously they are also involved in exchange of materials between blood and tissues. तो directly tissues और blood के साथ जो materials की exchange होती है वो capillaries के अंदर हो रही होती है. And the walls of capillaries are composed of only single layer. कहते हैं कि ये सिर्फ एक ही layer पे consist होते हैं which is known as endothelium. And the major function of capillaries are that they are involved in exchange of materials between blood and tissues. तो कौन कौन से ऐसे मटेरियल्स की एक्सचेंज होती है? मोस्टली जो फूड, ऑक्सीजन, वाटर वगैरह जो हैं वो एक्सचेंज हो रहे होते हैं टिश्यू और कैपिलरीज के बीच में, जो कि ईज़िली डिफ्यूज़ हो सकते हैं. और उसके साथ साथ वेस्ट प्रोडक्ट्स भी यहाँ पे डिफ्यूज़ होते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो है वो भी कैपिलरीज और टिश्यूज़ के बीच में उनकी एक्सचेंज हो रही होती है. एंड व्हाट आर वेन्स? They are obviously blood vessels that carry blood towards heart. So all veins carry a deoxygenated blood except the pulmonary vein जो कि oxygenated blood को transport करता है lung से heart की तरफ. And the walls of veins are again they are composed of same three layers as they are present in arterial wall. And the only difference is that कि जो middle layer होती है वो comparatively thin होती है as compared to जो arteries हैं. और lumen जो है that is more broader than that of arteries. तो major दो differences हैं कि middle layer जो है veins का जो middle layer है वहाँ पे लेस स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक टिश्यूज होते हैं एज कम्पेयर टू आर्टरी. इस वजह से ये कंपेरेटिवली थिन होता है एज कम्पेयर टू द आर्टरीज. एंड अगेन जो लूमन की जो साइज होती है दैट इज़ ब्रॉडर देन दैट ऑफ आर्टरीज.
अब टिश्यू के अंदर कैपिलरीज एक दूसरे के साथ जॉइन होके वेन्यूल्स बनाते हैं, एंड वेन्यूल्स अगेन कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म वेन्स। यहाँ पे हम डायग्राम में इसको देख लेते हैं, बल्कि दीज आर द आर्टरीज, these arteries divide to form arterioles which further divide to form capillaries, और ये capillaries जो हैं ये these capillaries will combine together to form venules and these venules will combine together to form veins। तो ये पूरा स्ट्रक्चर होता है। ये डायरेक्टली बीच में ये कैपिलरीज हैं, ये कैपिलरीज डायरेक्टली टिश्यू के साथ इन कांटेक्ट में हैं, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ डाइजेस्टेड फूड, ऑक्सीजन और फिर वे सब्सटेंसेस की जो एक्सचेंज है वो यहाँ पे हो रहा होता है। दीज आर द कैपिलरीज जो कि डायरेक्ट इन कांटेक्ट में हैं सेल्स या टिश्यूज़ के साथ। तो यहाँ से जो भी वेस्ट सब्सटेंसेस है या डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो वेन्यूल के थ्रू वेन में जाता है, और इस वेन के थ्रू फिर हार्ट की तरफ चला जाता है, और ये आर्टरी जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है हार्ट से, तो ये आके आर्ट्रियोल्स में डिवाइड होता है, और आर्ट्रियोल्स से फिर आगे जाके कैपिलरीज में, और कैपिलरीज से फिर अगेन टिश्यूज़ के अंदर या सेल्स के अंदर, और ये पूरा प्रोसेस जो है इस तरह से कंटिन्यू रहता है। And then general plan of human blood circulatory system. There are two most important scientists who revealed much knowledge about blood circulatory system, और वो कौन कौन है कि इब्नी नफीस और विलियम हार्वे के बारे में कहते हैं कि इब्नी नफीस वॉज अ फिजिशियन, और उसने ब्लड का जो सर्कुलेटरी पाथवे है उसको एक्सप्लेन किया है, और उसके साथ जो विलियम हार्वे है उसने जो ब्लड का जो हार्ट के अंदर जो ब्लड की पंपिंग है और जो आर्टरीज वेन्स और कैपिलरीज में से ब्लड की जो सर्कुलेशन है उसको उसने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। उसके बाद फिर इसको डिवाइड किया जाता है आर्टीरियल सिस्टम और वेनस सिस्टम के अंदर। There are different parts of arterial system: pulmonary trunk, aortic arc, dorsal aorta, renal arteries, gonadal arteries, inferior mesenteric arteries, pulmonary trunk जो कि ऑलरेडी आपने स्टडी किया था कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो राइट वेंट्रिकल से डायरेक्टली पल्मोनरी ट्रंक में इंटर होता है, और पल्मोनरी ट्रंक से ये फिर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये लंग्स की तरफ जाता है। रीनल आर्टरीज ऑब्वियसली जो किडनीज को जो आर्टरीज जाती है दे आर रीनल आर्टरीज। एवार्टिक आर्क जो है वो पल्मोनरी एवार्टिक आर्क जो है ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये एवार्टिक आर्क में ओपन होता है, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये फिर एवार्टिक आर्क फिर डिवाइड होकर डिफरेंट आर्टरीज बनाता है, जो कि डिफरेंट आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाता है। डोर्सल एवार्टा जो आपकी बॉडी की डोर्सल साइड की तरफ जाता है। इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम तक आर्टरी जाता है। गोनेडल आर्टरी जो गोनेड्स तक आपकी बॉडी के गोनेड्स तक जाती है। इसी तरह से इंटरकोस्टल आर्टरीज आपके रिब्स तक जाता है। कॉमन इलिक आर्टरी इलियम तक जाता है। एंड देन सिलिक आर्टरी, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी एंड फ्यूमोरल आर्टरी। फ्यूमोरल आर्टरी आपके लेग्स रीजन तक जाता है, ये सिलिया तक जाता है, सीलियम तक जाता है। एंड अगेन मेसेंट्रिक आर्टरी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम तक जाता है। वी विल सी इन दिस डायग्राम दैट यहाँ पे आप देखें दीज रेड कलर के जो वेसल्स नज़र आ रहे हैं दीज आर आर्टरीज। तो ये आर्टरीज बनते किस तरह से हैं? दिस इज़ एवार्टिक आर्क, ये पूरा एवार्टिक आर्क है जो कि एवार्टा बनाता है। यहाँ से ये आर्टरीज निकलते हैं, एक आर्म की तरफ जाता है और फिर दूसरा आर्म की तरफ जाता है। एंड देन नेक्स्ट आर्टरी टू हेड रीजन, ये वाला जो है हेड रीजन की तरफ जाएगा, फिर वहाँ पे डिवाइड होगा और आपके हेड रीजन के तमाम जो भी हिस्से हैं वहाँ तक ये ब्लड पहुँचा देगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एंड हियर वी हैव पल्मोनरी आर्टरी जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक लेकर जाता है। एंड हियर यू हैव पल्मोनरी वेन जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर आता है। और ये फिर डोर्सल एवार्टा जो कि आपका लोअर जो डोर्सल रीजन है वहाँ तक जाएगा, और ये डोर्सल एवार्टा जाके फिर अगेन इट विल डिवाइड
इनटू हेपेटिक आर्टरी जो कि आपके लीवर की तरफ जाता है, हेपेटिक रेनल आर्टरी जो आपकी किडनीज तक जाता है, एंड मेजेंट्रिक आर्टरी जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम तक जाता है, इलिक आर्टरी इलियम तक जाता है, फीमोरल आर्टरी जो आपके लेग्स रीजन तक जाता है. एंड अगेन we have venous system, pulmonary vein, common iliac vein. अगेन जिस तरह से नाम से लग रहा है, हेपेटिक वेन, सुपीरियर वेना केवा, inferior vena cava, renal vein, femoral vein, gonadal veins, and external iliac vein, hepatic portal vein, internal iliac. Just look at this diagram. अब ये दूसरा जो हिस्सा है, दिस इज वेनस सिस्टम. जो आपको ब्लू कलर में नजर आ रहा है, ये वेनस सिस्टम है. अब वेन्स अगेन फिर वेन फ्रॉम हेड रीजन आ जाएगा, ठीक है. सुपीरियर वेना केवा, ये हेड रीजन से दो इस तरह से आ रहे हैं, ये आर्म से भी आ रहे हैं, वेन फ्रॉम आर्म. ये दो लेफ्ट और राइट आर्म से दो वेन्स आएंगे आके, ये मिल के सारे जो है शोल्डर से, हेड रीजन से, ये सारे मिल के जो है दे फॉर्म सुपीरियर वेना केवा, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएगा हार्ट की तरफ. एंड देन दिस इज इंफीरियर वेना केवा, जो कि आपका जो डोर्सल बॉडी का जो पार्ट है, जो लोअर रीजन है आपका, वहाँ से लेकर आता है. दिस इज इंफीरियर वेना केवा. ये जो आपके पास है, दिस इज इंफीरियर वेना केवा. ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ जाएगा आपके राइट आर्ट्रियम में, और फिर ये आपने प्रीवियस लेक्चर में आपने डिटेल में स्टडी किया है. दिस इज वेनस सिस्टम. और फिर अगेन वी हैव पल्मोनरी वेन. पल्मोनरी वेन का क्या फंक्शन है, ये लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाता है हार्ट की तरफ. और फिर दीज आर हेपेटिक पोर्टल वेन्स. हेपेटिक पोर्टल वेन जो है लीवर, पेंक्रियाज से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ जाएगा. सिलिक वेन, सिलिक वेन अगेन हियर, एंड रीनल वेन अगेन किडनीज से, इलिक वेन इलियम से, फीमोरल वेन जो आपके लेग्स हैं वहाँ से. तो ये सारे मिल के जाएंगे और ये सारे कंबाइन होके फिर यहाँ पे आके ये इंफीरियर वेना केवा बनाते हैं. और ये ऊपर का जो आपका रीजन है जहाँ पे हेड, शोल्डर्स और नेक रीजन है, वो तमाम वहाँ के तमाम वेन्स मिलके इंफीरियर वेना केवा बनाते हैं, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपके राइट आर्ट्रियम में डाल देते हैं. और इसी तरह से ये पूरा जो है ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है आपके आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, वेनस और आर्टीरियल सिस्टम. And then we have cardiovascular disorders. What are cardiovascular disorders? कि कार्डियोवेस्कुलर डिसऑर्डर्स, ब्लड वेसल्स और हार्ट से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, दे ऑल आर क्लासिफाइड एज कार्डियोवेस्कुलर. The diseases that involve the heart or blood vessels, they are collectively known as cardiovascular disorders. तकरीबन जितने भी कार्डियोवेस्कुलर डिसऑर्डर्स हैं उनके कहते हैं कि दे हैव सिमिलर कॉजेज, मैकेनिज्म और ट्रीटमेंट. तकरीबन सब के, क्योंकि एक जैसे ही होते हैं और रीजंस भी एक जैसे ही होते हैं. वहीं कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स वगैरह की डिपोजिशन की वजह से ये डिजीज़ कॉज होते हैं, तो इसीलिए. एंड देन व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स ऑफ कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेस. एडवांस्ड एज, ऑब्वियसली एज के साथ साथ ब्लड जो है वो थिक होता जाता है, तो ब्लड की क्लॉटिंग रेट ज़्यादा हो जाती है. जब ब्लड ज़्यादा थिक होगा तो ऑब्वियसली हाइपरटेंशन होगी, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा. जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो ऑब्वियसली जो है वो हार्ट के ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, तो उसमें फिर कार्डियोवेस्कुलर डिजीज़ के ज़्यादा चांसेस होते हैं. अगेन डायबिटीज़ एक फैक्टर है. हाई ब्लड कंसनट्रेशन ऑफ लिपिड्स, कोलेस्ट्रोल या फिर ट्राइग्लिसराइड्स, टोबैको स्मोकिंग, ओबेसिटी, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल जिसमें बंदा जो है वो फिज़िकली एक्टिव नहीं होता, फिज़िकल जो है वो वर्कअप नहीं करता है, तो इन केसेस में ऑब्वियसली क्या होगा, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ेंगे, कोलेस्ट्रोल बढ़ेगा, या फिर लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स की कंसनट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, विच विल अगेन रिस्पॉन्सिबल फॉर थिकनिंग द ब्लड, या फिर वहाँ पे प्लग की फॉर्मेशन होती है, या फिर वो जमा हो जाता है और आर्टरीज वगैरह को ये ब्लॉक कर देते हैं.
And what is atherosclerosis or arteriosclerosis? These diseases are also known as narrowing of arteries, जिसमें आपके arteries narrow होने शुरू हो जाते हैं. This is obviously chronic disease which is caused due to accumulation of fatty materials, fatty acids वगैरह जो है fatty materials या fibrin arteries के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है, जिसको narrowing of arteries भी कहा जाता है. एंड फैटी मटेरियल कोलेस्ट्रोल या फिब्रिन आर्टरीज में जमा हो जाएगा. एज ए रिज़ल्ट क्या होगा कि जब बहुत ज़्यादा ये इसकी मास जो है कोलेस्ट्रोल की मास या फिर फिब्रिन की मास जब जमा हो जाती है वहाँ पे, तो एज ए रिज़ल्ट आर्टरीज अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं, प्रॉपर तरीके से परफॉर्म नहीं करेंगे. उनकी एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्टिंग जो प्रॉपर्टी है वो कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है. मतलब कि आर्टरी के लिए ये मुश्किल हो जाता है कि इतना उसके अंदर मास के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाए और रिलैक्स भी हो जाए. तो एज ए रिज़ल्ट क्या होगा कि प्लग फॉर्मेशन होती है. अब ये जो कोलेस्ट्रॉल का जो मटेरियल है वो आर्टरी के अंदर जब जमा होता है उसको हम प्लग कहते हैं. एंड दिस प्लग विल combine with blood clots to form thrombus, जिसको हम थ्रोम्बस कहते हैं. प्लग उस मटेरियल की होगी जो कि जिसमें कोलेस्ट्रोल होगा या फिब्रिन होगा या कि फैटी मटेरियल होगा, तो उसके साथ जब ब्लड भी जाके क्लोट करना शुरू, क्योंकि ब्लड एक फ्लूइड है जिसके अंदर ब्लड सेल्स होते हैं, तो बीच ब्लड जो ब्लड वेसल्स के बीच में अगर इस तरह का कोई मास होगा तो ब्लड जब फ्लो करेगा तो उस दौरान उसके अंदर के जो सेल्स हैं वो भी वहाँ जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, जो कि क्लोट करेंगे. उस मास के साथ ब्लड सेल्स भी क्लोट करेंगे. एज ए रिजल्ट उसकी अब साइज बढ़ जाती है जिसको हम थ्रोम्बस कहते हैं. अब ये थ्रोम्बस के अंदर अगर फ्लोट करने की एबिलिटी हो तो दैट इज़ नोन एज एम्बोलस, जिसको हम एम्बोलस कहते हैं. जो एक जगह से ब्लड फ्लो के साथ दूसरी जगह जाके कहीं पे वो फ्लोट कर सकता है या ट्रेवल कर सकता है, तो उसको हम एम्बोलिस कहते हैं. एंड देन वी हैव myocardial infections. Myocardium means the heart muscle and infection means tissue death. तो इसको हम कॉमनली हार्ट अटैक भी कहते हैं, जिसमें जो हार्ट के अपने मसल्स हैं उनकी डेथ हो जाती है, या अपने हार्ट के जो अपने टिश्यूज़ हैं उनकी डेथ हो जाती है, मसल्स अपना काम करना छोड़ देते हैं. ऑब्वियसली जो हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है उसी के बेस पे ही उसकी साइकिल चलती है, उसकी हार्ट बीट कॉन्टिन्यू रहती है और फिर ऑब्वियसली लाइफ कॉन्टिन्यू रहता है. जब उसकी बीट या उनके मसल्स के अंदर प्रॉब्लम आता है या टिश्यूज़ की डेथ हो जाती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं होगा. जब कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं होगा तो हार्ट जो है वो ब्लड को ही पंप नहीं करेगा. तो ये जो नॉर्मली इसको हम हार्ट अटैक भी कहते हैं. एंड दैट मे बी कॉज्ड बाय क्लोट इन कोरोनरी आर्टरी. कोरोनरी आर्टरी वो आर्टरी है जो हार्ट के अपने टिश्यूज़ तक ऑक्सीजन और फूड लेके जाता है, उसको हम कोरोनरी आर्टरी कहते हैं. जाहिर है जब कोरोनरी आर्टरी खुद ही ब्लॉक हो जाएगा, डिफरेंट रीजंस की वजह से ये ब्लॉक हो सकता है. वहीं कोलेस्ट्रोल वगैरह की वजह से प्लग फॉर्मेशन होती है, प्लग की वजह से भी ये ब्लॉक हो सकता है, या फिर ब्लड क्लोट होती है इसमें, इस वजह से भी ब्लॉक हो सकता है. तो ऑब्वियसली इसकी जो डायमीटर होती है वो बहुत स्मॉल होती है, तो माइनर अमाउंट में भी अगर कोई प्लग बनता है या ब्लड क्लोट होता है तो वो जाके कोरोनरी आर्टरी को ब्लॉक कर सकता है. एज ए रिजल्ट क्या होगा कि हार्ट अटैक होगा. एंड दिस इज बेसिकली द चेस्ट पेन, जो कि सीवियर किस्म की एक चेस्ट पेन शुरू हो जाती है, जो कि सैम्पटम है हार्ट अटैक का या मायोकार्डियल इन्फेक्शन का. अब उसके साथ साथ जो है ये पेन फिर माइग्रेट भी कर जाता है. ये लोअर जाज आर्म्स तक, लेफ्ट आर्म तक जा सकता है. लोअर जाज में ये पेन जा सकता है. नेक रीजन में ये पेन सीवियर हो सकती है, या फिर राइट आर्म में या फिर बैक में ये सिम्टम जो है ये शुरू हो जाते हैं. This
इज द डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन। देखें प्लग, ये कोरोनरी आर्टरी है, ये जो है प्लग फॉर्मेशन हो गया है, ये वही आर्टरी है जो आपकी हार्ट के मसल्स तक लेकर जा रहा है। तो ऑब्वियसली हार्ट टिश्यूज़ की फिर डेथ शुरू हो जाती है। और इवन अगर ये सिवियर किस्म का अटैक आता है, वो डिपेंड करता है कि जो है वो सिवियर अटैक है या फिर नॉर्मल अटैक है। अगर सिवियर अटैक है तो उन केसेस में इवन डेथ भी काज होती है, बंदे की लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है और इवन सडन डेथ भी कॉज हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि उस अटैक की वजह से हार्ट कितना डैमेज हो चुका है। अगर वो काफ़ी डैमेज हो गया है तो फिर वो दोबारा रिकवर नहीं हो सकता, तो उसके बाद फिर बंदा अनकॉन्शियस हो जाता है, बेहोश हो जाता है और इवन डेथ कॉज हो जाती है। व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑप्शंस वी हैव? इमीडिएट ट्रीटमेंट में क्या करते हैं कि ऑक्सीजन दिया जाता है फ़ौरन, एस्प्रिन वगैरह खिलाया जाता है या फिर सब लिंगुअल टैबलेट्स, ग्लाइसर ट्राइनाइट्रेट्स वगैरह दिए जाते हैं। एंड सेकंड ऑप्शन वी हैव इज़ एंजियोप्लास्टी, जिसमें क्या करते हैं कि मैकेनिकली जो कोरोनरी आर्टरी जो नेरो हो चुका है उसको वाइड करते हैं। उसमें स्टंट भी लगवाया जाता है। स्टंट एक मेटालिक ट्यूब होता है जो क्या करता है कि उस खास रीजन में जाके जहाँ पे वो ब्लॉक हो गया है कोरोनरी आर्टरी, वहाँ जाके ये एक्सपेंड हो जाता है। एक्सपेंड होके फिर क्या करेगा कि बीच में से स्पेस क्रिएट करेगा, ये उस क्लोट को ये हटाएगा, जो थ्रोम्बस बना है उसको हटाएगा, हटा के बीच में स्पेस क्रिएट करता है ताकि वो ब्लड फ्लो के लिए एक तरह से रास्ता बनाता है। एंड अनदर इज़ और ये एंजियोप्लास्टिक बैलून भी कहते हैं। अगेन उसका भी वही मैकेनिज्म होता है कि वो उस स्पेसिफिक जगह पे जहाँ पे ब्लॉकेज हुआ है वहाँ जाके ये फूल जाता है। फूलने की वजह से वो क्या करेगा कि उस जो मास डिपॉजिट हुआ है उसको डिस्प्लेस कर देगा, फैला देगा, फैला के फिर बीच में जो है वो रास्ता क्रिएट कर देता है ब्लड फ्लो के लिए। और अनदर लास्ट ऑप्शन क्या है कि बाईपास, जिसको हार्ट बाईपास सर्जरी कहा जाता है, जिसमें क्या करते हैं कि उस पेशेंट का जो किसी दूसरे बॉडी का पार्ट से ही आर्टरी या वेन ग्राफ्ट करके काट के उसको लेकर आते हैं और फिर कोरोनरी आर्टरी की जगह उसको रिप्लेस कर देते हैं। तो दिस इज़ ऑब्वियसली लास्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।